Good morning, students. Now we have continued our chapter number 9, class 11, history. This is video number 5, and today's topic, representation of the government and the protest movement. You know, the protest movement is the important topic of this chapter and is the start in the city of England. Now, first point, England enact the two Composition Acts in 1975 against the enacting the peoples of the protest. You know, these laws banned the unauthorized public meeting of the over 15% persons and the people's protest against the old corruptions. Now, the members of the parliament were against the giving the right to vote to the working class of the peoples. The support of the Corn Laws, which the prevent to important of the cheapest food till the price in the Britain had increased in the certain levels. The workers flooding the towns and the factories protest to orders to show their anger and the frustrations. There were the food to, or the bread rights from 1719 onwards, and the trade in the foods item was the favor of the traders and the affected the poor peoples. So the workers seized the stocks to breed and the sold at the correct cost rather than the rate fixed by the traders. So you know, ये जो प्रोटेस्ट मूवमेंट था बेटा, इसके अंदर स्पेशली जो इंग्लैंड में कंडीशंस थे वहाँ पे बेटा दो कम्युनिकेशन एक्ट इनैक्ट हुए थे 1795 के अंदर, और इसी को लेके इन्हीं दो कंपोजिशन एक्ट्स को लेके बेटा पीपल्स ने प्रोटेस्ट किया था। और प्रोटेस्ट करने में जो मेन रीजंस था बेटा, क्योंकि ये दोनों लॉ थे तो जहाँ भी कोई पब्लिक मीटिंग हो रहा था बेटा और वहाँ पे ओवर देन द 15% तो वहाँ पे बैन कर दिया था। तो जितने भी मेंबर्स थे ऑफ द पार्लियामेंट्स and the right to the working of class, they protest against this type of laws. So उन्होंने इसके अंदर बेटा क्या किया था, वर्कर्स सीज द स्टॉक ऑफ द ब्रीड्स, तो जितने भी बेटा खादान थे ब्रीड्स थे उनको स्टॉक को सील कर लिया, अपने पास ही रखा, उसको सेल आउट नहीं किया, एंड द करेक्ट कोस्ट द रादर देन द फिक्स रेट ऑफ ट्रेडर्स. Now second point is enclosures was the process from the 1770s. Under this process big landowners merged the hundreds of small farms to form the big farms. It affected the poor rural families who sought after the industrial workers. With the introduction of machines in the cotton industry, thousands of the handloom weavers होते बेटा जो हाथ से काम कर रहे थे, ठीक है, weavers that means bunkers were the thrown out of the work and were the subjected to the poverty as they could not compete with the machines in the textile industry especially. So the weavers began to demand the minimum wages for 1790s. Where the parliament refused their demand, they went on strike. So बेटा जब वीवर्स जो बुनकर्स थे उन्होंने अपनी डिमांड की मिनिमम वेजेस, ठीक है, जो डेली वेजेस उनको मिल रहा था एटलीस्ट एक मिनिमम उसका कोई लाइन फिक्स की जाए कि वहाँ तक उन्हें मिले, और इसी के लिए 1790s में द पार्लियामेंट रिफ्यूज देयर डिमांड. और जब पार्लियामेंट ने, संसद ने उनकी डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, सो दे वेंट ऑन स्ट्राइक, ठीक है, हड़ताल पे चले गए थे. लैंकशायर कॉटन वीवर्स डिस्ट्रॉय द पावर लूम्स इज़ द डिप्रेशंस, ठीक है. सो लैंकशायर ये इंग्लैंड का सिटी है, यहाँ पे कॉटन वीवर्स ने बेटा जो पावर लूम्स जो लग रखे थे जहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज़ में वर्क हो रहा था उसको डिस्ट्रॉय किया. सो क्रॉपर्स ऑफ यॉर्कशायर डिस्ट्रॉय द शेयरिंग फार्मर्स द थ्रेटिंग their livelihood, and they traditionally share the ship and the hand. During the riots in the 1830s, the farmers destroy threshing machines as they found the new threshing machines threats their jobs. अब ये थ्रेशिंग मशीन क्या कर रही थी बेटा, उनकी जॉब्स को अब एक मशीनाइजेशन हो गया तो बहुत सारे वर्कर्स का काम एक मशीन कर रही थी. सो जो वर्कर्स का एग्रेशन था उन्होंने इसको बेटा डिस्ट्रॉय कर दिया बिकॉज कि दे वांट टू जॉब. And next point is Ludditism. Ludditism is well-known protest movement for the rights of the workers who were affected by the arrival of the new machines from 1811 to 1817. देखिए Ludditism क्या था, एक बहुत ही वहाँ पे जाना माना एक मूवमेंट था. किसने किया था, ये वर्कर्स ने किया था अगेंस्ट इफेक्टेड टू द न्यू मशीनरीज. जो वहाँ पे न्यू मशीनरीज आ गई थी बेटा, द टाइम पीरियड ऑफ 1811 टू 1817, तो बेटा जब न्यू मशीनरीज वहाँ पे आ रही तो बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो जॉबलेस हो गए थे. इट वॉज स्टार्टेड बाय द जनरल नेड लूट. अब ये जो लुडिज़म है बेटा, ये नेड लूट के नेम पे ही लुडिज़म बनाया गया था, और इसको जो स्टार्ट किया था,
ठीक है. सो लीडरशिप प्रोवाइड बाय द जनरल नेड लूड. मिनिमम वेजेस, देयर इज द सम डिमांड्स. फर्स्ट, मिनिमम वेजेस, कंट्रोल ओवर द वेजेस ऑफ द वुमेन्स एंड द चिल्ड्रन. Third, work for those who had lost their jobs because of industrialization, and right to form trade unions were some of the demands of the participants of this movement. In August 1890, nearby the 18,000 working class peoples gathering the peacefully St. Peter's Field in the Manchester. अब यहाँ पे बेटा लगभग 80,000 लोग इकट्ठे हुए थे. अगस्त 1819 का बात है ये. एंड द डिमांड द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. और किसकी डिमांड कर रहे हैं वो? डेमोक्रेसी की बेटा. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल राइट्स की बात करें. द क्रस्ट विथ आयरन हैंड बाय द गवर्नमेंट, इट केम नोन एज द पीटरलू मस्कर्स. और बेटा वहाँ पे गवर्नमेंट ने, जो वहाँ की सरकार थी एट द टाइम, उन्होंने उनको बड़ी ही थ्रेसिंग टाइप से उनको वहाँ से हटाया. एंड इज द इंसिडेंट नोन इन हिस्ट्री इज पीटरलू मैसकर्स. Now some contemporary literature at the time, we have also the considered about two sources as the information given by the industrial revolutions. Now the important hard times, it's the written by the Charles Dickens. ठीक है. सो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर डिस्क्राइब द सफरिंग ऑफ द पीपल्स ड्यूरिंग. अब देखो बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो रिच क्लास था वो तो और रिच हो गया, बट जो पुअर और वर्किंग क्लास था बेटा, देयर इज कंडीशन इज आल्सो द मिजरेबल. तो उसी कंडीशन को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं. देयर इज द सम पोएट्री फॉर्म. सो यहाँ पे एक बुक है हार्ड टाइम्स, जिसको लिखा है बेटा चार्ल्स डिकेंस ने. इट्स रिफ्लेक्ट द कंटेम्प्रेरी इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी एंड द डिप्लोरेबल कंडीशंस ऑफ द पुअर पीपल्स. तो यहाँ पे जो पुअर पीपल्स हैं, गरीब लोग हैं, ये उनकी कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा है बेटा. D.H. लॉरेंस, अनदर ब्रिटिश एसिस्ट एंड नॉवलिस्ट, ये ऐसे भी लिखते हैं बेटा और नॉवेल्स भी लिखते थे. सो ऑल्सो द डिस्क्राइब अबाउट द हार्डशिप ऑफ द पीपल्स. Now one is the question emerges, was there is the industrial revolution, debate on the industrial revolution. Wow, is the fever and some group of person is against which industrialization. अब ये industrialization बेटा किसी के लिए अच्छा हुआ, किसी के लिए is not. So the term industrial revolution was used to describe the change. अब देखिए किसके लिए आप इसको यूज़ करेंगे, the term of industrialization, the change that occurred in the Britain between the 1780s to 1820s. So during these 14 years that the change occurred in the, especially in the England, the field of the cotton industry and iron industry we have considered as the industrial revolutions. So the term industrial revolution has been the challenged by the modern historians. Industrialization was the gradually change in industrial sector rather than the sudden revolutions. अब यहाँ पे बेटा जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है, आधुनिक इतिहासकार है, से अगेंस्ट की इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो आप बात करते हैं, इट्स द चेंज ओनली द इंडस्ट्रियल सेक्टर, नॉट फॉर द सडन रिवोल्यूशंस. आप इसको एक रिवोल्यूशंस नहीं कह सकते, क्रांति नहीं कह सकते. देयर इज द सम चेंज इन स्पेशली इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. So the considerations of the workers in the factories, wide use of the money, etc. where already exist prior to the 19th century industrialization carried out these the process towards the new levels of. So large areas of England left unaffected by the factories or the mines. अब बेटा एक और इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि पूरे इंग्लैंड के अंदर ही कुछ ही सिटीज़ थे, मैनचेस्टर थे, यॉर्कशायर्स थे, बर्मिंघम थे, यहाँ पे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को आया. पूरे ऑल ओवर इंग्लैंड में इक्वल लेवल पे इसका इफ़ेक्ट नहीं था. तो उसको भी एक पिन पॉइंट करते हैं हिस्टोरियंस. और फैक्ट्रीज़ और द माइंस, और स्पेशली ये फैक्ट्रीज़ में और माइंस के अंदर इसका ज़्यादा इफेक्ट देखा गया. सो देयरफॉर द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वॉज कंसिडर्ड हैज़ द इनकरेक्ट. इसलिए वो कहते हैं कि इसके लिए आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो टर्म यूज़ करते हैं, क्रांति, वो एक सही बात नहीं है. डेट इज़ द इनकरेक्ट, ये गलत है. इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड सेंटर्ड ऑन द फ्यू रीजन्स और द सिटीज सच एस लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम और न्यू कैस्टल्स. तो ये कुछ सिटीज़ है जहाँ पे लंदन है, मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है एंड न्यू कैस्टल्स. तो ये 4-5 सिटीज़ है जहाँ पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ रादर देन ऑल ओवर इंग्लैंड. सो द रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अब देखिए सबसे ज़्यादा इसका ग्रोथ कहाँ हुआ बेटा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज द बेस्ड ऑन द नॉन ब्रिटिश रॉ मटेरियल एंड द सेल्स अब्रॉड एंड नो मेटेलिक मनी. ऑल्सो द मेटेलिक मनी एंड द स्टीम पावर वॉज रेयर टिल द 19th century. The rapid growth of the British import and the exports from the 1780s occurred due to the resumption of trade with the North America.
द नॉर्थ अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैज़ दिस ट्रेड। अब इनके ट्रेड को बेटा जब अमेरिकन सिविल वॉर चला फॉर इंडिपेंडेंस, दे आर आल्सो द इफेक्टिव फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। जो यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट हो रहे थे, दे आल्सो द इफेक्टिव। Simultaneous industrial growth was to be seen after the 1815 to 1820. Now the French Revolution and Napoleonic War affected also the industrial and the factories decade after the 1793. Industrialization is closely related with the investment of the capital, building in infrastructures, installing the new machines and the rising the productivity also. However, the productivity investment grew suddenly only after the 1820s, and the cotton, iron and the engineering industries had occurred the less than half of the industrial production of until 1814. So in this video we have discussed the major impact of the industrialization, especially in the society. So thank you for this video.